الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس ولعنة دائمة ترتدية ولا أعدائهم يوم القيامة يوم الدين. قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات. ایک انتہائی عظیم گاؤں ہے معین الدین پور آل ظاہر کا پروردگار عظیم آزادیوں کی نگری ہے، بلکہ پورا گجرات ہی ایسا ہے مالک جہاں جہاں بھی ذکر حسین میری جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے، بالخصوص پروردگار سادات نظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ مالک آواز آمین کی ذرا بلند آئے، پروردگار ذکر شبیر کی صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ ایک خصوصی دعا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ کا تقاضا ہے، جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، چاہے وہ سادات کی صورت میں ہو یا سادات کے نوکروں کی صورت میں، جتنے بھی احباب یہاں آتے ہیں وہ جناب زہرا کی دعا بن کے آتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا سارے ماتمی بھائیوں سے، بالخصوص آل زہرا سے، کہ بلند آواز سے آمین کہیے، میرے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوامی پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نست و نابود فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائے۔ بابا جی اجازت بابا جی بسم اللہ جناب ذاکر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ سارا دن مجلس ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر ایک علاقے کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، ایک اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ میں جو حقیر آپ کی خدمت پہ کھڑا ہوں، میرا تعارف یہی ہے کہ میں سادات کا نوکر ہوں، اور ڈیوٹی میری یہ لگی ہے کہ جہاں بھی موقع ملے میں نے ممبر پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اب آپ کتنی دعا فرمائیں گے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ 10 محرم ہو یا عید غدیر ہو، میں نے جب بھی سادات کی نوکری کرنی ہے شاہ جی میں نے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ اعتراض یہ ہے کہ سیدوں کے ممبر پہ نہ ان کے ذاکروں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ بابا جی مالک آپ کو صحت سلامت رکھے، اور میرا سدا بہار جملہ شاہ جی یہی ہے کہ صدقہ علی کی جتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے، بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے شاہ جی، کیونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر قرآن پڑھنے میں دھڑ کا محتاج بھی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنا آپ بولیں گے تو میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، زیادہ بے شک شور نہ بھی ہو، سادات کی مومن کی دعا آ جائے ممبر تک، یہی کافی ہے۔ آئیے میں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑوں اور سجدہ عشق پیش کروں۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں 3-4 کیمرے، اس کے علاوہ بھائی موبائل بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آئیے سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر مدب جعفری کی نمائندگی کرتے ہوئے، مالک آپ کو سلامت رکھے، عظیم مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں۔ پروردگار پہلا سوال، آواز نوکر کی ٹھیک آ رہی ہے جناب؟ بابا جی دعا فرمائیے گا۔ پہلا سوال تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میرے لیے کافی ہے۔ مالک یہ بتا کہ یہ جس قرآن کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ نوٹ کے ساتھ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ تیرا قرآن شاہ جی کتنا سچا ہے؟ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنا سچا ہے اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ جتنے بالخصوص کالے لباس میں ماتمی ہے نا، آپ پہ تو واجب ہے قرآن پہ بولنا، کیونکہ جس سید کا ماتم کرتے ہیں نا وہ نوکے سنا پہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، اتنا سچا کہ نہ برابر جھوٹ نہیں۔ ذرا آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ جب سیدوں کے نوکر قرآن پڑھنے پہ آتے ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں۔ پروردگار یہ بتا کہ یہ جتنا قرآن ہے اس میں علم کتنا ہے؟ محمدی پور کا علم ہے، گجرات کا علم ہے، لاہور کا علم ہے، پنجاب کا علم ہے، پاکستان کا علم ہے، ساری دنیا کا علم ہے، عرش کا علم ہے، عرش کا علم ہے،
कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर हलाली बोले नज़्ज़ल अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै। हमने पूरी कायनात का इल्म कुरान के बाबा जी मालिक साहब सर के हमने शादी जो घर से कुरान के लिए आए, हमने पूरी कायनात का इल्म कुरान के, जरा आवाज़ हो जाइए, कुरान के भाई जान, पूरी कायनात का इल्म कुरान के। परवरदिगार ये बता कि ये जो तेरा कुरान है ये जमीन से पैदा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चेक आपने ये करना है कि जब सैयदों के नौकर कुरान पढ़ने पे आते हैं तो कैसा पढ़ते हैं। मेहरबानी परवरदिगार ये बता कि ये जो कुरान है जमीन से पैदा हुआ है या नाजिल हुआ है। और मैं इसी याद को देख नज़्ज़ला, तर्जमा करो जी, नज़्ज़ला सारे नज़्ज़ला, भैया आप क्यों नहीं बोल रहे, नज़्ज़ला नाजिल हुआ है। परवरदिगार नाजिल हुआ तो ये बता मुहर्रम में आया है, सफर में आया है, रबीउल अव्वल में आया है, रबीउल सानी में आया है, जुमादुल ऊला में आया है, कब आया? पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने इसे रमज़ान के महीने में नाजिल किया। परवरदिगार रमज़ान में दिन भी है रातें भी हैं, ये बता दिन को आया है या रात को आया है? पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। हमने इसे चली मुबारक रात में नाजिल किया। परवरदिगार ये जो मुबारक रात है इसका कोई नाम भी है? पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने इसका नाम शादी मेहरबानी, हमने इसका नाम लैलतुल क़द्र रखा है। अब आपकी बारी। परवरदिगार ये जो लैलतुल क़द्र है इसकी अपनी कदर क्या है? मालिक आपके हाथों को सलामत रखे जो कुरान सुन आया है। सबके नाम शादी मेहरबानी, शादी शुक्रिया बाबा जी, अल्लाह आपको सहायदरी बाबा जी, मालिक आपको सलामत रखे। सब बहुत मेहरबानी बाबा जी, शुक्रिया। परवरदिगार ये जो कुरान है कब आया? मैं रात को। कौन सी रात? मुबारक रात। नाम उसका मैं लैलतुल क़द्र। शादी बाबा जी ये जो बाबा जी लैलतुल क़द्र है इसकी अपनी कदर क्या है? पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बाबा जी फरमाया हमने इसे 1000 महीनों से अफजल। शादी बचपन से जैसे ये बच्चे मासूम बैठे हुए हैं, हम भी जाहिर है मजलिसों में बैठते थे। कोट शाह में, मेरा पिंड भी सदात का पिंड है, अक्सरियत वहाँ पे सईदों की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा टड्डा है, बड़े बड़े उलमा पढ़ते थे। तो शादी हमने भी बचपन में यही सुना कि 1000 महीनों से अफजल है। मैं बाबा जी एक बार बह के सोचा यार गिनिए सही वाला किन्ने बनते हैं। मैं बाबा जी गिन के नतीजा कर दिया, बाबा जी मैं गिनने ने ये बाबा जी बनता है 83 साल और कुछ महीने। मैं तो फिर कहना वा जो सईदां दे नौकर कुरान पढ़न ते इंज पढ़ दे जे। शाह जी बंदा 83 सवा 83 साढ़े 83 पौने 84 साल मुसल्ले पे खड़ा रहे, इबादत करता रहे वो एक तरफ। बाबा शाह जी, बाबा जी जाकिर भी हैं आप, आले रसूल भी हैं, खुसूसी दुआ चाहिए बाबा जी। 83 84 साल बंदा शाह जी मुसल्ले पे रहे वो एक तरफ। सैयद दादा लैलतुल क़द्र वाली एक रात की इबादत एक तरफ। भाईजान मैंने बड़ा ढूंढा मालिक वजह क्या है? खुदा की कसम सैयद कादमी साहब वजह मिल गई। छठे मौला से पूछा मौला वजह क्या है? मैं तुझे नहीं पता लैलतुल क़द्र मेरी दादी ज़हरा का नाम है। मालिक आपके हाथ को सलामत रखे। ये हाथ नहीं है भाई, ये कदीर की शक्ति है। ऊंचा नारा हैदरी। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपका साथ सलामत रखे। जी बाबा जी बिस्मिल्लाह, चाचा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बाबा जी मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि अभी तमहीद में कुरान पढ़ रहा हूँ और इतना अच्छा सुना जा रहा है। और अब जब मेरे मौला अली की विलायत का कसीदा आएगा तो फिर क्या बनेगा इंशाल्लाह। सोनी दुआ में पढ़ता खाएगी। मालिक आपको ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे ख्याल 4 बजे तक 4:30 बजे तक बरामदगी करानी है बाबा अली शाह जी ने। मैं भी खड़ा हूँ, बाबा जी बैठे हुए हैं, शाह जी बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह टाइम इतना नहीं, जल्दी कर रहा हूँ। सोनी दुआ जल्दी मेंबर पे पहुँचाइए ताकि मैं कुरान जल्दी पढ़ सकूँ। मालिक आपको सलामत रखे। ये 1000 महीनों से अफजल रात है। अच्छा परवरदिगार कुरान आया रमजान में, मुबारक रात में, लैलतुल क़द्र में। परवरदिगार अभी तूने कहा कि कुरान नाजिल हुआ है। जो छोटे बच्चे या मुझसे छोटे भाई हैं वो देखें, इसे अरबी में कहते हैं नज़ूल। इसे कहते हैं सऊद। ये सऊद है और ये नज़ूल। परवरदिगार तू कहता है कि कुरान नाजिल हुआ है। मालिक फिर ये बता खुद उड़ता हुआ आया है या इसे कोई लाया है? तो मैं पढ़ कुरान इसमें मेरे मुर्शद आ रहे हैं जैसे सही तशरीफ लिख रहे हैं। मैं अगला जुमला कहता हूँ क्योंकि जब कुरान बाबा जी छाँव में आ जाए, आ जाए। और भी ये मोमिन भाई भी जो बैठे हुए हैं भाई, अगर हो सके तो साए में आ जाए, साए में आ थोड़ा सा आ जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸ ਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है, ठीक है। आपकी इज्जत हमसे ज़्यादा है, जनाब सईदा की निगाह में आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। हम तो किराएदार हैं, आए नज़र लियो चले गए। आप हैं जो खालिस आज़ादारी के लिए आते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। इसलिए बाबा जी
बाबा जी आपके आने से पहले यहाँ तक पहुँचा था कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल रात है। परवरदिगार ये बता, इतने सारे आले ज़हरा बैठे हैं, इतने सारे सईदों का एहतराम वाजिब समझने वाले बैठे हैं, परवरदिगार ये बता कि ये खुद ब खुद कुरान आया है या कोई लाया था? मैं पढ़ कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़ल बिही रूहुल अमीन, हमने इसे जिब्रील के जरिए भेजा। बाबा जी जहाँ जहाँ सैयद बैठे हैं ना, चेहरे और सोनी आवाज़ बताएगी कहाँ है। और जो शख्स ये समझता है कि सईदों का एहतराम वैसे वाजिब है जैसे नमाज वाजिब है, उससे मेरी बात है, बाकी किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। परवरदिगार जिब्रील क्यों, जिब्रील क्यों, सैयद और मलाइका क्यों? फरमाया तुझे नहीं पता, कुरान में पावर इतनी है किसी कमी फरिश्ते की औकात ही क्या है। हाय हाय बाबा जी, मालिक आपके हाथों में शादी सलामत रखे, अल्लाह बाबा जी आपका साथ सलामत रखे। शादी फरमाया किसी छोटे, बाबा जी बिस्मिल्लाह, किसी छोटे मोटे कमी फरिश्ते की औकात क्या है कि वो कुरान को हाथ डाल सके। अच्छा परवरदिगार, बाबा जी लफ्ज ना जिब्राइल है, शादी ना जबरील है, छोटे भाइयों लफ्ज है जिब्रील। एक मरतबा हर शिया अपने मुंह से निकाले, क्या लफ्ज है? आपका ये तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, चूंकि जिसका मैं नाम ले रहा हूं ना, ये हुसैन का दर्जी है, इसलिए हर हुसैनी सदके जावा, हर हुसैनी का ये तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, जिब्रील। अच्छा परवरदिगार जिब्रील कुरान लाया, जिब्रील। शाह जी आधा मजमा बोला है, आधा मजमा चुप है। हो सकता है बाबा जी मेरे समझाने में फ़र्क आया हो, चूँकि हमारी शाह जी ज़ुबान में नक्स हो सकता है, आपकी मार्फत में नहीं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, कुरान लाने वाला हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। शादी हूं बोले सैयद दादा आप जी हैं, बाबा जी बिस्मिल्लाह करो, बाबा जी हूं सारे बोले जी, नहीं 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 इंगना क्या आखा भाई जी, फिर क्या जी शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी मैंने कहा था नहीं बोले, शाह जी अब सारे बोले हैं, अगर मेरे मुंह से गलती निकली है बाबा जी सारे बोले, नहीं नहीं मौलवी साहब इंज ना करो, तो हयात आ कि तुम सईदां दे नौकर हो, इंज ना करो जी मेहरबानी जनाब, सदात के सदके में आपने मेरा हया किया, मेहरबानी सरकार। शाह जी मुझे क्या कहना चाहिए था? बाबा जी मैंने कहा क्या? सैयद दादा काफिर, काफिर शिया काफिर, ये काले कपड़े वाले, ये पिटा कुटा करने वाले काफिर है। मौलवी जी इस सर पे कुरान रख के बता, जब कुरान लाने वाला अलैहिस्सलाम है, बचाने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? सबके दावा, सबके दावा, मालिक आपको सलामत, सारे हैदरी बाबा जी मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। शाह जी, शाह जी जिमें जिमें सोहनी दुआ मिलती है ना भाई, मेरे दिल च पछतावा आ रहा है। वो दस दिया फोन आया से हरकी मोमदीपुरा मरम का, तो मैं कहा पीर डाट ने मैं नहीं पढ़ना, ये तो बाबा जी बड़ा सोहना सुनते हैं। चलो जिंदगी रही मुलाकात बाकी बात, ठीक है बाबा जी, हम मालिक आपको सलामत लगे, जरा ठहर जो ना, ठीक है मालिक आपको सलामत रखे। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप घर के नौकर को भी अच्छा सुनते हैं, पाक बीबी आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। एक कुरान कौन लाया? परवरदिगार। क्यों? परवरदिगार ये जो गाजी का पाक बाबा है ना, नहजुल बलागा वाला पीर, बाबा वजह शाह जी, बाबा जी नहजुल बलागा वाले पीर ने, आपके पाक दादे ने शाह जी एक खुतबा दिया है मलाइका पे। शाह जी कुरान दी अजमत दी कसम, मुझ जैसा अनपढ़ तालिब इल्म अगर चाहे तो 70 मील से उस एक खुतबे में पढ़ सकता है। और अगर कोई आलिम दीन हो तो वो कितना पढ़ेगा, जिससे तेरे मौला अली ने यूं बयान किया। मैं आपको निचोड़ ये देता हूं कि मौला फरमाते हैं कि फरिश्तों की तादाद ये है कि न सैकड़ों, न हजारों, न लाखों, न करोड़ों, न अरबों, न तादाद। कौन सा फरिश्ता बना, क्यों बना? शाह जी सैयद ये उन्हीं को पता है जिनके सदके में बने। शादी जो सदके बाबा जी उन्हीं को पता है जिनका सदका है, वरना हमने फरिश्ता कभी नहीं देखा, तो जेड़ा वेंदा है फिर वो अगों नहीं वेंदा, ठीक है ना जी। मालिक आपको सलामत रखे। कुरान हदीस में सुनना चाहिए, बंद अपनी जगह, शेर अपनी जगह, कसीदे अपनी जगह, कुरान हदीस में आपको सुनना चाहिए। मालिक आपको सलामत रखे। मैं सलाम कर रहा हूँ आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार कितनी पावर है तेरे कुरान में, सुन बिस्मिल्लाह पढ़ कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ शाह जी कसीदा होगा, शाह शुरू, बाबा जी कसीदा शुरू, बाबा जी लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। मैं सुनो, मेरे कुरान में इतनी ताकत है, जरा मेरे शिया नहीं होगा, इतनी ताकत है, अगर मैं अल्लाह इस कुरान को शादी पहाड़ पे नाजिल करता तो वो पहाड़ शादी बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह बाबा जी, रेजा रेजा, छोटे बेटा रेजा यानी कि चूरा चूरा सदके जावा, मैदे की तरह, रेत की तरह, काले काले लून की तरह हो जाता। परवरदिगार ये तेरा कुरान है। फरमाया हाँ याद रखो, जो मेरा कुरान है ना, जो मेरा कुरान है ये पत्थर तोड़ देता है, जो मेरा कुरान है। आज छोटे बच्चे दो आने शादी में, दो बेटे ने पुत्र दसो बेटा, ये जो पहाड़ होता है ये लैलन का होता है, लैलन का नहीं कादा होता है,
लो जी बच्चे हंस के कह रहे हैं जी पत्थर का। बाबा जी हूँ सारे फिर बोले थे इस सैयद से लेके आखिरी हलाली तक, भाई कुरान शादी कुरान कह रहा है कि पहाड़ पत्थर का है और मैं जहां आता हूं ना मैं पत्थर तोड़ देता हूं, चाहे 21 रमजान हो या 13 रजब हो। हाय हाय मालिक आपके शादी हाथों को सलामत रखे, मिल के उच्चा नारा हैदरी। जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी को फोन आया किसी जाकर के इसलिए जा रहे हैं, आपको पता नहीं इंतजामिया वाले हैं वो हुसैन के खास आदमी नौकर हैं, वो कभी आएंगे कभी जाएंगे, मेहमानों को लाएंगे, इसलिए बाबा जा रहे हैं। मेरे सामने फोन आया, अब मेरे को देखिए मालिक आपको सलामत रखे। जहाँ से मैं पढ़ के आ रहा हूँ वहाँ से भाई आलम भट्टी साहब कह रहे थे कि मैं 4 बजे आऊँगा काजी तक से पढ़ के, शायद वो आने वाले हों, अगर ना भी आए तो फिर बाबा अली शाह जी मौजूद हैं। आप मुतमिन रहे, साढ़े तो बाद चंगे जाकर भी आए हैं भाई, मेरे तो बाद चंगे भी आए जे। एक माड़ा सुन लो, वैसे माड़ा होंदा कोई नहीं क्योंकि जो सईदा का नौकर है वो माड़ा नहीं होंदा। मालिक आपको सलामत रखे। लो जी सर जी भी हाँ बिस्मिल्लाह। अच्छा बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मालिक आपका साया सलामत रखे। अगर सदात ये कह दे तो फिर इससे भी बेहतर मेरे पास और क्या इज्जत हो सकती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी फरमाया कि इतनी ताकत है मेरे कुरान में। बाबा जी ये तमहीद थी, आपको पता ना जाकिर साहब मेरे पीछे भी जाकिर साहब बैठे हुए हैं, जाकिर साहब 5-6 शेर पढ़ के ना कसीदे के फिर कहते हैं हुण मैं ओ शेर पढ़ लगा जिदे वास्ते मैं कसीदा शुरू तो मेरा हुण ओ ही है। सारे तैयार है जी भाई, सारे बाबा जी सारे तैयार है। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। कैमरे तो उन्होंने बंदे बड़े सोहने बोलते रहे, इंज लगता है जो सारे शाह मैं आप भाई ने आके वेख लो सारे सैयद बैठे जे ते आप ही जेडे भाई दे ने सैयद नहीं जिंदे। हैदरी बाबा जी मालिक आपको सलामत सदके ना मैं कभी भाई ने मुझे लोड़ ही कोई नहीं पैंती क्योंकि मेरे के हाले रसूल आप लैके दुआ करते हैं, मैनू की लोड़ किसी बंदे पाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी परवरदिगार कौन लाया कुरान? फरमाया जिब्रील। मालिक क्यों? छोटा मोटा फिर सकते फरमाया कुरान में ताकत इतनी है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह कि अल्लाह की हैबत से, कुरान की हैबत से पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अच्छा परवरदिगार मालिक मैं एक देसी बात करूं, अनपढ़ बंदा हूं, देसी बात करूं। परवरदिगार ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ ये तो हमारे इलाके में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इस दुनिया में, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या गुजरात पाकिस्तान हो, एक ताकत की अलामत है। लोग कहते हैं जी फलां शाह साहब वही वो सैयद सबर का पहाड़ है, फलां जाकिर साहब यार वो तो मसायब का पहाड़ है, फलां मौलवी साहब यार वो तो फजाइल का पहाड़। बाबा जी इसका मतलब है लफ्ज़ पहाड़ हम कहाँ यूज करते हैं? बाबा जी ताकत की वो परवरदिगार जिससे हम ताकत की अलामत समझते हैं, तू प्याना है वो भी इन्हें जो का नहीं कि कुरान को उठा सके मालका। फिर ये सारे हलाली पूछते हैं वो कौन सी जगह है जो कायनात सदके जावा, जो कायनात के पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर है, जिसने आराम के साथ कुरान को उठा लिया। तो मैं पढ़ कुरान नजर भी रूह अमीन और अकल में वो 2 जहां से ज्यादा मजबूत हुसैन के नाने का दिल है। जी सैयद जी मालिक आपके शादी हाथों को सलामत रखे। हर हलाली जो पीछे खड़े जी उच्चा नारा हैदरी। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। जी सर नाम बाबा जी क्या कौन सी जगह? शाह जी सैयद दादा इतना बड़ा जुमला कहने लगा कुरान की अजमत की कसम मेरा दिल करता है मेरे सामने को बंदा है जुमला पढ़े तो मैं उठे बवा ते अल्लाह की कसम फिर उठ के उन्होंने आखा सदके जियो अल्लाह और रंग लाई, अल्लाह और रिश्ता दई, अल्लाह और तो सईदा राजी करे। इंज मैं दुआवां उत्थे बह के दियां। एडा वड्डा कुरान की कसम जुमला है। आखा जी मालिक ये कुरान शाह जी बाबा जहाज कुरान कहाँ आया? मेरे मोहम्मद के दिल में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अल्लाह से चंद सवाल पूछे, अल्लाह ने एक एक जवाब कुरान से दिया। हमने कहा सच्चा कितना है? अल्लाह कहना नाखून बराबर झूठ नहीं। इल्म कितना? अल्लाह 2 जहां का इल्म है। आया कब? रमजान में। आया कब? मुबारक रात में। आया कब? लैलतुल कद्र में। लाया कौन? जिब्रील। पहाड़ उठा न सके। आया कहां? मोहम्मद के दिल पे। सैयद से लेके आखिरी पीर हैदर शाह जी मोहम्मदी पर तो सैयद खड़े हैं। बाबा जी जरा निगाह कीजिएगा, सईदा दी आंखें साढ़े तो ज्यादा गहरी है। शादी देखो कौन सा बंदा है बाबा जी जिसकी नमक मियां सब चल रही हो और जुमला खा जाए या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है कुरान आया है मोहम्मद के दिल पे। आप बताइए आपका दिल क्या है? मैं शिया सुन्नी किताबें पढ़ के देख, अल फातिमा तो कल्बी, मेरा दिल ज़हरा है। सदके जावा बाबा जी मालिक अल्लाह अकबर जियो जी बहुत मेहरबानी बाबा जी शुक्रिया। हैदरी मालिक आपको सब अल्लाह
पीर साईं बाबा जी ये बड़ा जुमला सोना सुना गया है। बिस्मिल्लाह बाबा जी मालिक आपकी आंखों पर रहम फरमाए। अक्सरियत जो सैयद बैठे हैं उनकी आंखें बरस पड़ी क्योंकि जुमला ऐसा था। बाबा जी एक लम्हा जरा आंख पे कंट्रोल रखिएगा क्योंकि हुण मैं इस तो उत्ते लफ्ज़ आख लगा बाबा जी जो अभी मैंने कहा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ज़ैगा मुश्तबा जिस बीबी का तुमने जुमला कहा है वो इस तो उत्ते भी कोई गल है। हाँ इसके ऊपर हो सकती है बात, अगर इसी बीबी की हो तो वो भी हो सकती है। वो जुमला बड़ा वड्डा जे ते ए देखो तुहाडे पुत्र की मेहनत है। अगर आपको ये जुमले किसी और कैसेट में मिले तो समझिएगा कि मैं झूठ बोल रहा था, और आपको अपने पुत्र के सीने से मिले फिर समझो कि सईदां दे पैर चुमन की जदाए जी मैंने अल्लाह मिंबर से दी है तो मैं फिक्र आख लगा। हूँ सर के बाबा जी जुमला वड्डा है तो आवाज़ सोहनी मिंबर पे आए, सोहनी आवाज़ होनी चाहिए। एक बंदा भी चुप रहा तो कुरान की कसम जब मैं कब्र में जाऊँगा तो मैं कहूँगा पाक बीबी इतना बड़ा शेर कहा था मैंने किसी जगह, और ये हलाल ज़्यादा मातमी होकर चुप रहे। या सुल्ला कहाँ आया मैं मेरे दिल पे या शादी या सुना आपका दिल क्या है। पूरे भरे पंडाल से 5 बंदे हाथ उठा के बोला मैं राजी हूँ क्योंकि जुमला मुश्किल है, जिसे समझ ना आए पहले माफी मांग रहा हूँ। या सुना कहाँ आया मैं मेरे दिल पे। सरकार आपका दिल क्या है मैं मेरी ज़हरा मेरा दिल है। शादी आज पता चला कुरान में क्यों लिखा है कि बगैर वुजू कुरान को टच करना हराम है। और इसकी निस्बत बतूल से है, और इसकी निस्बत आ सकते जाना। हाय हाय बाबा जी बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। शादी अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। मियां साहब मेहरबानी बाबा जी शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत करे। युता हेरा कुम तहीरा और सदके जावा क्योंकि पाक बीबी है अपने बाबा का दिल। इसका मतलब है वो मकाम जहां कुरान नाजिल होता है वो मकाम है जनाब सैयदा की इस्मत। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार बगैर वुजू और गुस्ल इसके हरफ जेर ज़बर को टच करना भी हराम है। इस कुरान की निस्बत है जनाब सैयदा से। मेरा ख्याल है जिमें तुम सुनते हो पे इस नाम फजाइल कंटिन्यू रखना मुश्किल है लेकिन 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट जरा फजाइल का मूड बनाइए। 2 मिनट क्योंकि बहुत सारे लोग रो रहे हैं। 2 मिनट सिर्फ और मैं आपको सलाम करता हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार कुरान आया शादी कल्बे मुस्तफ़ा। बाबा जी पहले ये बताइए कि अपने पुत्र से लुत्फ आ रहा है कुरान सुनने का। मालिक है थोड़ा मुश्किल का। बाबा जी पता क्या है ये सिर्फ ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे जैसे हज़ारों और भी लोग हैं जो मेंबर पे इस तरह की गुफ्तगू करना चाहते हैं। शर्त ये है आप तामन करें क्योंकि हर जाके डरता है यार पढ़ांगे तो अगो नाम इस लगेगी तो रेट घट जाएगा अगो लोग बुलाएंगे नहीं। अगर आप तामुन शुरू कर दें तो और बहुत बाबा जी मेहरबानी बहुत सारे मेरे से 1000 गुना बेहतर लोग मौजूद है मेंबर पे जो इससे बेहतर कुरान आपको सुना सकते हैं। वो पढ़ दे क्यों नहीं कि यार को दांत थोड़ी होनी है, दांत थोड़ी आई तो फिर न्याज घट जाएगी तो डायरी खाली हो जाएगी। इसलिए अगर आप तामुन करें तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। कुरान पाक दी कसमें हाले कख भी नहीं पढ़ा गया। ये जो पूरी कायनात जाकरी करी ना अली की अजय असली अली पाक दी जुत्ती भी नहीं पढ़ सके। जैसे जैसे अकल बढ़ेगी कुरान खुलेगा समझ आएगी गाजी का बाबा किसे कहते हैं। ठीक है मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा बाबा जी जरा मेरे साथ मिलिए 5 मिनट और पढ़े फिर मैं अपने मुर्शिदों को निबर दूं। अच्छा कुरान कहा आया कल्बे मुस्तफ़ा पे। बाबा जी आप 1 मिनट मुझे दीजिए, मुश्किल बात है मुझे तनहा ना छोड़ना। परवरदिगार जो हम पूछते हैं तो कुरान से बताता है। मालिक ये बता के कुरान आया है बशरियत की हिदायत के लिए। ठीक है शाहजी बाबा जी एम आई राइट। कुरान आया शाहजी इंसानों की। परवरदिगार पहाड़ पे आता तो वो रेजा रेजा हो जाता तो मोमदीपुर में मैदान भी है जहाँ पे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तुम मैदान में नाजिल कर दे, मोमदीपुर वाले जाएं, शिया सुन्नी जाएं, सदा तो गैर सर ए बाबा जी एनकर कुरान पढ़िया हिदायत लें वापस आ जाए। मोहम्मद ने नाजिल क्यों किया? बाबा जी सवाल समझ आया? नौजवान भाइयों आपके लिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। बेटा छोटे बेटो जो मेरे बेटों को जरा मेरे छोटे भाइयों को जरा बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान आया है बशरियत की हिदायत के लिए। मुस्तफा पे क्यों? बाबा सर की बाबा जी मेहरबान। बाबा जी मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। शाह जी जे वजाहत शारी मेरे पीर आखन कि आ जाएगा मुजतबाई मेरा पुत्रा मेरा नौकरा ए ही शेर जिदे वास्ते तू मेले शुरू की है। तो बाबा जी हो नहीं क्योंकि तवल्ला से कोई शिया तवल्ला से हल्का सा पुश हो जाए बंदा तेरे खैर ही है। जेड़ा शिया तबर्रा घट करे ना फिर वो शिया आते हूँ तबर्रा होने लगा जे ये तबर्रा होने लगा जे आले ज़हरा दे दुश्मन से तबर्रा होने लगा। तैयार हो? परवरदिगार मुस्तफा पर कुरान की पढ़ कुरान सूरह नहल 16वां सूरा आगे 4 4 40 ते 4
40 ते 4 उच्ची आखो 40 ते 4 सोना बोला जी, सोना बोला जी। और मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी वजह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है। नाखून बराबर शक निकले, ये आपका पुल है, इस पे उल्टा लटका के मत्थे में गोली मारी है, मैं माइक पे करूँ मेरा कत्ल माफ। अगर सही हो तो फिर आज के बाद बकवास ना करना कि शिया मेंबर का कुरान नहीं है, शहीदों के लोगों को कुरान नहीं आता। मालिक आपको समझ के जेल जबर में फर्क हो, तर्जुमे तफसीर में फर्क हो, मेरा कत्ल माफ है। मैंने सर उठाइए, इतने मुश्किल दौर में शायद इतनी मुश्किल बात करने लगाओ, इस सही से लेके आखिरी भाई तक हर हलाली मेरे सर बोले क्यों आया मुस्तफा पे। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नहल 44 नंबर आयत, वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऊंची बोला जे, पर मैं मोहम्मद हमने तुझ पे कुरान इसलिए नाज़िल किया कि तू सहाबा को बता अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। हाय 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 बाबा जी मालिक आपके हाथों को मेरे साउंड वाले भाई हल्का बड़ा अच्छा जी, अल्लाह आपको सब साउंड वाले भाई थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा क्योंकि आवाज खेलते जा रहा है, हल्का सा बढ़ाइए ताकि मैं वो बंदा देखूं जिसकी नबज चल रही थी। बंदा लिखना है, शानी भाई बंदा लिखना है, मैं उसकी नबज चल रही हूँ शादी, वो समझता हो कि विलायत अली पे बोलना वाजिब है और अली और बतूल के दुश्मन पे लानत करना डबल ट्रिपल वाजिब है, वो बंदा बोले परवरदिगार क्या कहा, तुम्हें हबीब शादी हमने तुझ पे कुरान इसलिए नाज़िल किया ये तो बय्यिना लिन्नास है ताकि तू बयान कर लोगों के लिए क्या व्हाट मा नुज़्ज़िला इलैहिम कि उनकी तरफ नाज़िल क्या हुआ है। शाजिद कुरान दी अज़मत दी कसमें ये आयत नहीं तमाचा है उस चेहरे पे जिसने कहा था कुरान काफी है। हाय हाय बाबा जी मालिक आपका हाथ सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करें शादी। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। एक 5 मिनट कम है 4 बजने में, तो मेरा ख्याल है इतनी देर में मैं बाबा जी को मेंबर दे दूं। बानी ते परा होने ने उन्होंने पढ़ी चला बानी की चाहते ने तो, लेकिन असा अपना हिसाब से रखना है जी। अच्छा गुजरात केड़ा कदी कदी आने रोज होने जो अज ही सारा पढ़िया तो अगों नहीं आना। एक आज और पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा अपने ईमान से बताइए क्योंकि कुल्ले ईमान के मानने वाले हैं। इंज बैठे बैठ दसो अभी तक आपके पुत्र ने जो कुछ कहा कुरान तो बाहरों है, जो मैं बयान कर रहा हूं साथ में कुरान आता है ना। एक और पढ़ ली एक आयत, परवरदिगार तूने मुस्तफा पाक पर कुरान क्यों नाज़िल किया, मैं ताकि मेरा हबीब लोगों को बताए कि मैं अल्लाह कुरान में क्या कह रहा हूँ। शादी फिर कुछ ही बोला है, इसका मतलब है कुरान में कह रहा है कि कुरान मोहताज है मोहम्मद के बयान। मेरी चौकड़ करो, मेरी सदके जाओ, मेरी चौकड़ में 5-6 नब्बे कथे चौकड़ मालिक आप सदके जाओ, मालिक आपको शादी में लग रहा सैयद आज़ा काज़मी साहब बाबा जी इसका मतलब है हैदर शादी कुरान कह रहा है कि मैं मोहताज हूँ बयान मुस्तफ़ा का। बाबा जी हो सकता कोई छोटा बच्चा कहे मुझ तो भाई साहब चाचू जी मौलवी साहब सानू समझ नहीं आई, तो मैं उन्हें समझ लाना जी कुरान मोहताज है ज़ुबान मुस्तफ़ा का। जब मैं अब चूंकि अब थक गए अब कुरान सुन के आखिरी अर्थ पढ़ूंगा, वरना अभी मेरे पास आयतें काफ़ी थी लेकिन तुम थक गए हो, एक और सुन लो। इसका मतलब है जब तक पाक मुस्तफ़ा अपनी ज़ुबान को हरकत ना दी समझ नहीं आ सकती अल्लाह कुरान में। अच्छा परवरदिगार हूँ एक गल और दस देते बस, मेरा मजमा भी थक गया। एक गल और दस मालिक ये बता कि कुरान मोहताज है मुस्तफ़ा के बयान का। आप जी बिल्कुल ठीक है। परवरदिगार ये बता कि तेरे मोहम्मद के बयान का तरीका क्या है। भाजी मौजू का लुत्फ आ रहा है। कई लोग कहते हैं बाबा जी, कई लोग कहते हैं मुझ तो भाई साहब मौजू नहीं पढ़ते। असल में बाबा जी उनका दिमाग इतना नहीं होता कि वो मेरे साथ साथ शामिल हो सके, ठीक है, क्योंकि मैं 2023 में 2032 की पढ़ाई कर रहा हूँ। असं मर खप जाएंगे बाद चो निके निके बच्चे देखेंगे ना बाबा जी यूट्यूब आकर के यार काम करके ने आराम से हमारी तकरीर सुनी, खोलेंगे कुरान 16वां सूरा आ आयत भाई सही आ क्या सुना, ठीक है बाबा जी। हाँ साडा की पता बाबा जी जो हालात ने इतने हम आगे हो रहे हैं कि नहीं, जैसे हालात जा रहे हैं। इसलिए बाबा जी मेहरबानी इसलिए ऐसा कुछ कर जाए ताकि आने वाली नस्लों को बच्चों को फायदा हो। मालिक आपको सलामत रखे। परवरदिगार ये सारे आले रसूल, ये आले रसूल को मानने वाले ये सारे बातें पूछते हैं तेरे मुस्तफ़ा के बयान का तरीका क्या है। बाबा जी एक गल थोड़ी बाबा जी तबरा कर ली सही दादा लो फिर सुना जी अल्लाह की आवाज़ जाएगा मुझे तो भाई ये बता कोई नमाज हफ्ता है कोई नहीं, ये बाबा जी नमाज तो आ रहा है कोई यार उच्ची बोलो। बाबा जी नमाज मंगल है तो शाह जी बुद्ध वाले तो बंदे ही चवल सी ना। बाबा जी सदके जाओ बुद्ध वाले तो बंदे ही चवल है ना जी। शाह जी मेहरबानी। शाह जी इसका मतलब है हफ्ते के दिनों में से कौन सा नमाज है नमाज
اب مولا تو حسن احمد کی اچھی آخر شاہ جی حیدر شاہ جی اپنے من میں بولے نمازیں اور میں نماز جمعہ میں اترے چھوٹے ہو جیسے ہفتے میں ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ ہے نا، اسی طرح 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے. یہ آپ کو یاد ہو گیا؟ حسین کے مجلس صدقے میں یاد ہو گیا؟ جیسے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے، اسی طرح 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام بھی سورہ ہے. شاہ جی اس بابا جی میرا قرآن دی قسم میرا اپنا دل پہ آندا ہے بابا جی، میرا اپنا دل پہ آندا کہ اس تو بعد منو قصیدہ چھڑ دینا چاہیے. ایڈا بڑا شعر پڑھ لگا پائتن دی قسم میں آپ آنا واہ 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 واہ. پروردگار یہ بتا بیان مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ جمعہ دوسری آیت میرے نبی کے بیان کا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے یعنی ہر 6 دن کے بعد مولوی صاحب بڑے پیٹ کے ساتھ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأميین رسولا لم یضرهم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سنو میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے شاہ جی، یتلو علیہم آیاتہ، یہ میرا مصطفیٰ جو ہے نا یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. بابا جی کیڑا شیعہ جدی اماں شیعہ ہوئے شہید آدھا تو بنا چکا دے ویزکیہم اور سارے بنا دے. میں جو میرا مصطفیٰ ہے نا یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ہائے ہائے بابا جی صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھ کو سناؤ یار کیوں نہیں بولے آصف بھائی ٹوٹل کیوں نہیں بولے صدقے جاواں انہوں نے بھائی سارے مل کے اچھا نعرہ حیدری. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا شاہ جی کا یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ. شاہ جی پھر جا شاہ جی تلاوت کرتا ہے مصطفیٰ سیدوں کا نانا اور ویزکیہم میرا مصطفیٰ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. بابا جی پونا مجمع بولا ہے 25% بندے جڑے حیران نا شاہ جی میں سیداں دے صدقے جو انہوں نے ہور حیران کر لگا. سن لو پھر جڑے حیران ہو. جہاں پہ سیدوں کا نانا آیا تھا نا وہاں 95% بندے پلیت تھے. جڑے حالے بھی حیران ہو حیران کرا انہاں سیداں دی قسم ہے میرے نبی کے آنڈی بھی پلیت تھے، گوانڈی بھی پلیت تھے اور سامنے گھر والے بھی پلیت تھے، پچھلے گھر والے بھی پلیت تھے. پائنٹن دی قسم ہے شاہ جی آپ کی جد کی قسم 95% بندے پلیت تھے. شاہ جی گل کریں شاہ جی جتھے تھوڑی پلیتی ہے نا اتنے چھوٹے نبی آئے نے. تے قرآن دی قسمیں گجرات لو جہاں وڈی پلیتی تھی نا وڈی پلیتی وہاں اللہ نے سب سے بڑا نبی بھیجا. اور میں کہنا اس تو بعد میں نہیں جو پڑھنا تو میں نہیں اللہ اٹھ پو تے کل تک بولو. ایک مہربانی جس کے دل میں کعبے کی طرح علی رہتا ہے وہ کنوسی نہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. اکثریت میں لوگ پلیت تھے اسی لیے ایک سگی بہن نے کہا تھا اور مار اسے ہاتھ نہ لگانا یہ پاک ہے تو کرے گا. بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ میرے بھائی تو موبائل بنا رہے ہیں جی حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے بابا جی میرا مصطفیٰ آیا ہے پلیت لوگوں کو. شاہ جی بندہ پاک ہو کے آکھے شاہ جی دھیان رکھا شاہ جی اے میرا نبی آیا ہے پلیت لوگوں کو تے سید بندہ پاک ہو کے آکھے کہ میں پاکاں ورگا بڑا پلیت ہے. پھر بابا جی صدقے بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی زندگی باقی ملاقات باقی. میرے صدقے جا بابا جی مہربانی. یہ جو ذاتیں آئی تھی نا لوگوں کو پاک کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو لوگوں نے بڑا مارا. بابا جی 19 محرم سیدہ دی نگری ہے. میں چاہتا تو میں بغیر مصائب اتر جاتا. میں طالب علم و خطیب ہوں، میں مصائب نہ بھی پڑھتا تو مجھے بانیوں نے کیا کہنا. لیکن بابا جی میرا دل کرتا ہے چونکہ سید بیٹھے بسم اللہ کر تو میں بابا جی بسم اللہ کرتا. میں 2 جملے یہ مصیبت کے کہتا ہوں بابا جی. ایک جملہ بابا جی دہرا کے نا پھر میں ایک مشہور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک جملہ دہرا کے سید آدھا یوں آستینیں الٹ کے نا یہ یوں بلا تشریح یوں آستینیں الٹ کے غازی کا حیدر قرار بابا یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے نا قیامت والے دن 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے کہے گا اے غریبی. میں شاہ جی تھوڑی ہائے تو صدقے جاواں بسم اللہ کر ہائے غریب صدقے جاواں. چاچا جی سیدہ نے کام چاہے واجب ہے. میں میاں صاحب میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ جو آنسو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ آنسو آ جائے کیونکہ جو آنسو نکلتا ہے نا وہ جناب زہرا کے رومال میں جاتا ہے تو وہ تو
बड़ी शादी तो फैल शादी नसीबों वाली आंखें हैं, मैं हर जगह ये पढ़ता हूँ, मुकद्दर वाली आंखें हैं सैयदादा। जिस आंख से पानी निकले नामे हुसैन पे पाइतन दी कसमें, वो तो मुकद्दर का सिकंदर है। हाँ हाय मेरे आपके बस में है। शाह जी बिस्मिल्लाह बाबा जी। सैयद पानी तो बाबा जी दूर की बात है ना, आप एक जुमला शाह जी सुनते हैं, जरा मुझे बताइएगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। शाह जी का जुमला है, छठे मौला फरमाते हैं, जो हमारे में रोए या रुलाए या रोने जैसी। शाह जी मैं ये समझता था कि गल इत्थे ही है बस, इस तो अगे नहीं। बाबा जी मैं तालब इल्म हूं ना, मैं ये समझता था कि सईदां दी करीमी इन्नी हुई है बस, कि जो रोए रुलाए या रोने जैसी हम जन्नत के जामिन है। मैं क्या यार सही साढ़े बड़े करीम ने ते साढ़े तक गल थोड़ी पहुंची है। बाबा जी फिर कुरान की कसम थोड़ी हाय की कसम फिर लभद्या मैनूं जुमला लभदा है, सुनावां तुहानूं, रोए रुलाए या रोने शब्द इस तो अगे वध के सही आंदा यार, जे इन्हां भी ना कर सकते उत्थे बह के एक बारी सोच असीं की सां ते साडे नाल की होया। और मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, जाफर साहब तेरी जन्नत का जाफर बिस्मिल्लाह बाबा जी, मालिक आपकी हाय कबूल करे। शादी सैयद ने कहा हाय गरीबी बाबा जी, बिला शाह जी आप क्या मेरे याद होते थे हाय गरीबी। सैयद अंबिया पूछेंगे या अली तेरी जात वो जात है जो दुनिया में छुप छुप के हमारी मदद किया करती थी, और या अली आज तो खुद गरीबों की तरह रो रहा है। हूँ तुहाडे सईदों तुहाडे दादे गल की तो तुसां ओहदा मुल पाना है। अली रो के कहेंगे ए अल्लाह की सवाना खोज तो तुम ही बताओ, कि वजह शाह जी तुम ही बताओ। अली रोए ना तो क्या करे, देख नहीं रहे आज हर कोई कफन समेत आ रहा है। छोटे भरा मेरे वीरो हाय वाजिब है, सईदां दे काम से बेगौरी नहीं करनी, हाय सारे करो संके देखो बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह। आज हर कोई कफन समेत आ रहा है। शाह जी मेरा हुसैन आज भी बगैर कफन के आ रहा है। शाह जी आपके जद की कसम है, थोड़ी देर के बाद हुसैन आएंगे जख्मी हालत में, अली मौला आगे बढ़ेंगे, अपने पुत्र को अपने सीने से लगाएंगे, सैयद वहां बोसा देंगे जहां सनान इब्ने अनस ने नेज़ा मारा था, जख्मी पेशानी चूमेंगे। और सईदों गैर सईदों आदमियों, अल्लाह करे आप अपने गम में कभी ना रोए। सुनाए गमे शबीर के शाह जी लिखा है हुसैन मौला सैयद इतनी शिद्दत से, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, आप फजाइल में बाबा जी रो रहे थे, इतनी शिद्दत में रोएंगे कि नबियों को अली का रोना शाह जी भूल जाएगा। अली आगे बढ़ के मेरा पुत्र करीब करबला, इतनी शिद्दत में रोने की वजह क्या है? शादी हाय ऊंची आए उच्चा रो के हुसैन ने कहा बाबा मैं आपका बेटा हूं ना, और बगैर कफन के आया, बाबा आपसे बर्दाश्त ना हो सका। बाबा जरा शाम के जिंदान में देखिए, कफन तो दूर की बात अभी तक कड़ियां भी मौजूद हैं। सदके जमान नती तो फिर सदके हौसला बाबा जी, हौसला बाबा जी। बाबा मेरी सकीना को शादी, बाबा मेरी सकीना को सदके जामा कड़ियों समेत अल्लाह आपकी आंखों पे रहम फरमाए, अल्लाह आपकी हाय पे रहम फरमाए। बाबा सदके जामा, बाबा मेरी सकीना को कड़ियों समेत दफनाया गया है। शाह जी आपके पांचवें मौला से पूछा गया मौला ये बात सच है? बाबा जी ये बात सच है कि आपकी टूटी सकीना कड़ियों समेत दफन है? तेरे बाकी लोग सईदों के पांचवें दादे ने कहा सच है। का मौला ये भी सच है कि आपकी टूटी सकीना को आपके बाबा ने अपने हाथों से दफनाया था? इमाम फरमाया ये भी हक है। कहते मौला फिर यजीद ने रोका था कि इस सैयदजादे की बेड़ियां ना उतारी जाए। इमाम फरमाया हम सैयद हैं, झूठ नहीं कह सकते, कोई ऐसा मना नहीं था। कहता मौला फिर बताइए आपके पाक बाबा ने किस मजबूरी में अपनी बहन को अल्लाह की दो फिरत में कयूदहा कड़ियों समेत दफन किया? शादी मैं नौकरा बाबा जी इतने कोई सैयद होए तो वजाहत ना पड़े, मैं बाबा जी जितना मुमकिन हो सके पर्दा बाबा का हाय दूसरा करनी है। इमाम बाकर ने अपना अमामा उतारा, मातम कर कहते हैं मजबूरी ये थी, भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी खुदी के गोश्त में रस हो गई थी। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी कि मेरी टुटी का गोश्त भी कट कट के जमीन पे सब के जाना। हौसला बाबा जी, हौसला सैयद आदा, हौसला सैयद आदा, बिस्मिल्लाह करा मौला आपका मातम मेरे शाह जी फरमाया ये मजबूरी थी। बाबा जी कराची का मिंबर है, कराची का शादी आमिर शाह जी अलामा तालब नूरी मिंबर पे थे, जैसे बाबा जी आप बैठना मेरा तस्वीर शाह जी बिल्कुल इत्तेफाक से आपका भी चेहरा ऐसा ही है। शाह जी की चिट्टी दाढ़ी वाला सैयद उठा, बाबा जी शाह जी उठ के वो कहता है अलामा साहब मैं जात का सैयद हूँ, पेशे का डॉक्टर हूँ, और हम ये समझते हैं सैयद कि आप हमारे बहुत बड़े जाकिर हैं, शाम गरीबा पढ़ते हैं, और अहले सुन्नत अहले हदीस भी आपको सलाम करते हैं कि शियां दा जाकिर कुरान बड़ा पढ़ता है। जोरी साहब मैं सैयद हो के पूछना सब तो ज्यादा प्यासी हुसैन की सकीना क्यों रही? बाबा जी जुमला अलामा का है, मेरा ख्याल है कि आपकी हाय निकल जाएगी। अलामा साहब के हाथ में तस्वीर थी, गोद में रख के मुंह पे मातम कर कहता वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दो छीने थे।
تو میں بسم اللہ کرا، جیسے ہی وہ پانی لے کے آتا بی بی پھوپھی کی ہوٹ میں چلی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حوصلہ بابا جی عالمی صاحب حوصلہ بابا جی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگوں اور یہ ظالم مجھے تماچے مارے۔ بابا جی میں وعدہ کیا تھا نا، حیدر شاہ جی وعدہ کیا تھی کہ ایک شاہ جی مشہور جملہ سید ادا اللہ آپ کی آنکھوں پہ رہا شاہ جی، ایک بار نام مولا نظر اللہ نظر سان ایک مرتبہ اپنی آوازوں کو رکی، ایک بار سال لگو تو آنا مولا حسین دا واسطہ ایک بار سال ہے کہ ایک کوئی جملہ ادھے منٹ تے میرے پیر ممبر تھے، ایک بار سن لو۔ اے آپ سنتے ہیں نا یہ ذاکرین سے کہ انہاں ظالماں نے انہاں علی دیاں پتراں نوں نہیں ماریا جنہ علی دیاں آج اپنے پتر کو گل سن لو اس تو اگلی، اور آج ہم پڑھیں گے نا تو کل پھر ہماری آنے والی نسلیں یہ جملہ دہرائیں گی، جیسے یہ جملہ مشہور ہو گیا نا کہ انہوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں اتنا مارا جتنا علی کی بیٹی۔ ہوں اگلی گل اپنے پتر کو سن لو، یہ سجدہ کا نوکر دسنے کا میک دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم انہوں نے اتنا سید زادیوں کو مارا نہیں جتنا ستایا ہے۔ میں اگلی پھر دھیان رکھوں، بڑا ماریا نے کوئی شک نہیں، ماریا بڑا نہیں، لیکن مارن تو بہت ستایا نے۔ یہ ساری زبان یہ میں ستایا کیا اپنے وڈیرے زبان سے، ہوں میں اپنے نوجوان دسا چھوٹے بھائیو میں بسم اللہ کرا، ہوں میں تھوڑی زبان دسا یعنی مینٹلی ٹارچ کرنا، ذہنی اذیت۔ ایک مثال دیا، ایک مثال میں مثال دینی تو مجھے پتہ لگ جانا ہے سید کتنے کتنے بیٹھا ہے۔ میاں صاحب آخا جملہ، میاں صاحب شاہ جی سید یہ جو آپ کے ساتھ محمدی پر پرانا تڈا ہے، یہاں پہ پاکستان کا ہر ذاکر پڑا ہے، اے ممبر تک اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ثابت نہ کرا میرا سجدو قتل معاف ہے۔ یہ جڑا تھی سنتے ہو نا وجہ شاہ تو لاکے سے گلہر گلو تک ہر ذاکر کو سنتے ہو کہ 9 مرتبہ غازی کا سر نوکے نیزہ سے بازار میں گرا تھا، تو اٹھی جگ دی قسمیں گرا نہیں، جہاں بی بی زینب ہوتی تھی جان کے گراتے تھے۔ یہ پاک بی بی زینب کے سامنے جان بوجھ کے عباس کا ساتھ جھٹکے ڈالا، یہ ذہنی ٹارچ کرتے تھے۔ انہوں نے سید زادی کو مارا بڑا ہے لیکن مار سے زیادہ ستایا ہے، اور ستانا ایک جملہ سنو کہ میں اپنے پیروں میں ممبر دیا دربار یزید میں سید زادی کھڑی ہے، یہ کتا تخت پہ تھا، اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آدھا منٹ میرے لوگوں تو میں چلا ہے، آدھا منٹ شادی آدھا منٹ بابا جی ایک بار سال ہے کہ بابا جی گرمی بڑی ہے، ایک بار سال ہے کہ بعد جماعت آئے رہ جائے تو میری نوکری پوری ہو گئی۔ شاہ جی یہ کتا کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ ہوں جن سید بیٹھے ہو اپنے پتر کو معاف کرا جی، پاویں 2 سال کا سید ہے پاویں 100 سال کا ہے، پتر سمجھ کے معاف کرا جی۔ بابا جی یہ جس کسی نے کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے، اگو بی بی پتہ کر دیجیے میں پوچھتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ شاہ جی حوصلہ تیسری مرتبہ بتاتی ہے یا ظلم کروں؟ شاہ جی ایتھے سید سجاد 22 سالوں کا بڑھا سجاد سید رو کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، بس 3 مرتبہ میری بہن بولی ہے رسی بڑی کام ہے۔ صدقے جاؤ شاہ جی میری بہن بول رہی ہے، صدقہ حوصلہ بابا جی، حوصلہ بابا جی آدھا منٹ پڑھنا اس کے بعد نہیں پڑھنا جی۔ سید اللہ یہ کھلو کے ماتم کر دو جی، اللہ کرے اپنی بہنوں کے نصیبوں پہ آپ کو کبھی رونا پڑے جو سجاد کی اجڑی بہن پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا میری بہن تراوری بولی ہے اور رسی ظالمہ بڑی تنگ ہے۔ اس نے شاہ جی اشارہ کی، صدقے دعویٰ شاہ جی اس نے اشارہ کیا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے سید آدمی کے رسی کو ڈھیلا کیا۔ بولو بابا جی تیرا نام کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نام فاطمہ ہے، بابا پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ فرمایا بابا مجھے کہتے تھے سکینہ تجھے دیکھ کے میرے دل کو سکون آتا ہے، اس لیے تو میری سکینہ ہے۔ شاہ جی بندہ سید ہوئے تو ماتمی ہوئے ہاتھوں کے کول ہوئے تو ماتم نہ کرے، قرآن کی قسم کی قسمیں ہو نہیں سکتا، میرا دل کرتا میں اب ٹکرا مار کے بجا شاہ جی یہ فکرہ کہاں کہتا ہے اچھا میرے قریب آ یہ بتا کہ تیرا بابا تجھ سے کیسا پیار کرتا تھا؟ میں بے مثال۔ اچھا تیرا بابا تجھے کچھ کھلاتا بھی تھا؟ جب بھی میرے بابا صبح نکلتے نا گھر سے تو شام کو جب واپس آتے تھے نا تو مدینے کی عمدہ ترین مہنگی نایاب کھجوریں میرے لیے میرا بابا لاتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے نا اپنے ہاتھ سے بابا جی بسم اللہ کرا، معصوم بچے بھی رو رہے ہیں۔ شاہ جی یہ صدقے جاؤ بابا جی روحانیت ہے، شاہ جی یہ سیدان کی برکت ہے، بسم اللہ کرا شاہ جی سیدان کی برکت ہے۔ بھائی جان معافی بھائیو فرمایا اپنے ہاتھ سے میرا بابا مجھے کھلاتا تھا، اور جنہوں نے کہا دیاں نے میری شاہ جی 2 بیٹیاں ہیں، بابا جس کے گھر میں بیٹی موجود ہے، بابا جس کی ہائے واجب ہے حسین کی بیٹی پہ آنکھاں جھٹلا بابا جی کہتا ہے اچھا کھجوریں اگر میں تجھے ابھی کھجوریں کھلاؤں، میں کہنا ماریا بڑا نے پر اس کو چوکھا ستایا نہیں، وہ کیوں کہتا ہے میں کھجوری کھلاؤں کھائے گی؟ بی بی پاک نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، امام نے اشارہ کیا جو کہتا ہے مان ورنہ کتا ظلم کروائے گا۔ سگے زادی اپنے بھائی ہوتے تھے، خدا کی بات ہو کے شاہ جی آگے بڑھی اور قریبا بابا جی ہو گئے۔ بابا جی میں پھر کہنا میں ہوں سیدوں کا نوکر، یہاں کھڑا ہو سید وضاحت کے ساتھ پڑھے بابا جی میں پردہ پانا جی مجھے معاف کرا جی بابا جی پردہ پانا میری مجبوری ہے کیونکہ میں تھوڑا نوکر ہوں بابا جی تو معاف کرا جی۔ کہتا قریبا اور قریبا اس کے بابا جی پاس ایک تشت تھا، اس کے اوپر کپڑا تھا، کہتا ہے ابھی میں کپڑا ہٹاتا ہوں جتنا جی چاہے میری طرف سے اجازت ہے
शाह जी खजूरे खाती रहना। पीर वजा शाह जी पुत्र समझ के माफ कर दे। बाबा जी इस कुत्ते ने यूं आगे बढ़ाया, सैयदजादी ने हाथ बढ़ाया, जैसे सकीना का हाथ था इसके करीब आया, ऊंची हाय करा दे। इस कुत्ते ने जैसे कपड़ा हटाया, खजूरे नहीं हुसैन की कटी गर्दन थी।